It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Yes, hello. Good evening to all of you. Good evening to all of you. So everyone please confirm beta, am I audible, am I visible clearly to all of you? Audio video clear, एक बार सभी लोग confirm कर देंगे. So in the last class we were discussing about the, चलो audio video clear, how are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? So I hope you all are good and preparing well for your exam. आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. So in the last class we have discussed about the design of flexible payment as per the IRC 37/2012 और how to calculate the design traffic. यहाँ तक का डिस्कशन कर लिया था. फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था और आई होप आप सभी ने उस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस किया होगा, सो दैट नाउ यू हैव क्लियर आइडिया हाउ वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला. तो दो टर्म अभी है और भी हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. दैट इज द VDF एंड lane distribution factor. So that discussion we are going to complete today. Chalo, let's start the class, and before starting the class let me introduce myself for those who are new to this class or watching this class first time. तो I am Kshitij Sachan और सब्जेक्ट जो मैं डील करने वाला हूँ बेटा, आई विल डील विद द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, RCC एंड CPM. दीज आर माई सब्जेक्ट दैट आई विल कवर फॉर द एग्जाम गेट, ESE और जो भी आपके स्टेट्स के AE और JEE के एग्जाम है. फॉर दैट द डिस्कशन इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. दिस इज माई रेफरल कोड दैट इज KKS10. सो इस कोड की हेल्प से यू ऑल कैन एक्सेस ऑल द फ्री फीचर्स ऑफ अनअकैडमी एंड यू कैन ऑल्सो अवेल 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट जस्ट बाय अप्लाइंग दिस कोड. So if you want to start your preparation with Unacademy in a systematic way, in an organized way, you can plan your subscription. Two types of subscription are there. One is Plus and second is Iconic.
So in the case of plus subscription, what you will get? So live classes will be there, weekly test, structured courses, unlimited access, rank improvement batches and crash course batches. So all these features you are going to get on in the case of plus subscription. One more option is available, that is Iconic. So in the case of Iconic, whatever features that I have explained for the plus, they are already included in the case of Iconic. In additional to plus feature, you will get a personal coach, personal mentor will there, dedicated doubt clearing educators you will get to clear your doubt. Study material will also provided to you. Study planner will be there, study booster sessions and personalized test analysis. So all these are the features of plus and Iconic subscription. You can plan as per your need which suits you more. And for both the subscription process, you all can use this code, that is KKS10, to avail 10% off on your subscription cost for plus or for Iconic. So for personalized guidance, you can complete your subscription process using this code, that is KKS10. Also avail 10% off on your subscription cost. और इस कोड की हेल्प से you all can participate in the upcoming Unacademy GATE and ESE मेगा कॉम्बैक्ट. तो 5th of December को मॉर्निंग 11 AM आपका ये मेगा कॉम्बैक्ट होने वाला है. 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं. दिस इज द बेसिकली फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट. 60 मिनट का टेस्ट होगा, वेयर टॉप 200 स्टूडेंट विल गेट द स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन देयर रैंकिंग and 100 lucky participants are going to get these prizes. So everyone do participate in the Unacademy Combat. So simply just visit the Unacademy app and use this code to enroll. तो आप इस कोड की हेल्प से सभी लोग इनरोल कर सकते हैं गेट एंड ESE मेगा कॉम्बैक्ट के लिए. तो those who have not enrolled yet, they can enroll using this code, that is KKS10. With the help of this code, you all can also attend all the free special live classes of all educator. और सभी क्लासेस को एक्सेस करने के लिए यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्नर ऐप एंड यूज दिस कोड टू अटेंड ऑल द फ्री लाइव क्लासेस ऑफ ऑल एजुकेटर. तो सभी इंटरेक्टिव लाइव डिस्कशन विल बी देयर, पोल्स पार्टिसिपेशन विल बी देयर. यू ऑल कैन पार्टिसिपेट इन द पोल टू गेट योर रिलेटिव रैंकिंग. यू कैन यूज दिस फीचर, दैट इज रेज अ हैंड फीचर, टू टॉक टू योर एजुकेटर इन अ लाइव क्लास रिलेटेड टू योर डाउट एंड क्वेरी. यू आर गोइंग टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन, लेक्चर्स नोट आप डाउनलोड कर सकते हैं. And you can watch the live as well as recorded session. Both session you can access. So if you are preparing for GATE and ESE 2023, then for civil engineering point of view, you can join the batch R of the Arohan series. और ये बैच आपका स्टार्ट हुआ 24th of November से. Here the discussion is bilingual और सब्जेक्ट जो डिस्कस किया जा रहा है, that is the strength of material. For GATE 2022, you can enroll for the batch B. Here also the discussion is bilingual. तो आप रैंक इम्प्रूवमेंट बैच के साथ भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. सो वाइल कंप्लीटिंग योर सब्सक्रिप्शन प्रोसेस, यूज दिस कोड एंड अवेल 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, और आप सभी इन बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं. सो आई होप ऑल दिस डिटेल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहाँ तक का सभी डिस्कशन सभी को क्लियर है. और इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिज़ाइन ट्रैफिक. तो हमारी जो बातचीत चल रही थी, दैट इज रिलेटेड टू हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिज़ाइन ट्रैफिक. और इसके लिए आपने फॉर्मूला देखा था, n इज इक्वल टू 365a 1 + r/100 to the power n-1 इंटू व्हीकल डैमेज फैक्टर इंटू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाई r/100. तो दिस वॉज द फॉर्मूला दैट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास. तो अगर मैं टर्मिनोलॉजी की बात करूं इन दिस फॉर्मूला, तो नाउ वी आर डन विद द कैपिटल N, A, R, स्मॉल n और फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ये सारे टर्म मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिए थे. यस, N इज द डिजाइन ट्रैफिक, A इज द इनिशियल ट्रैफिक इन द टर्म्स ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड. R is the rate of growth of traffic. Small n is going to be the design life, and factor of safety. Just to consider those factor कि आप ये जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, these are your projection. और ये जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसमें अगर कहीं पे भी कोई वेरिएशंस रह जाता है तो उस फैक्टर को कंसीडर करने के लिए वी विल अप्लाई द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. और इससे रिलेटेड दो टर्म आपने और डिस्कस किए थे, दैट वाज योर पी वैल्यू एंड एक्स वैल्यू. तो पी वैल्यू होता था हमारा प्रेजेंट डेटा,
अभी किसी भी रोड पे करंट डेटा या फिर एज पर द लास्ट काउंट जो भी कॉमर्शियल व्हीकल पर डे थे दैट वाज योर पी। और अगर एक्स की बात करते हैं तो एक्स वाज द कंस्ट्रक्शन पीरियड इन ईयर। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए थे। क्लियर है भाई? यहां तक की बातें, यहां तक की बातें सभी को क्लियर है? तो नाउ वी आर लेफ्ट विद द टू टर्म, वन इज गोइंग टू बी द वीडीएफ एंड अनदर इज गोइंग टू बी द एलडीएफ, व्हीकल डैमेज फैक्टर, व्हीकल डैमेज फैक्टर, and LDF is going to be your lane distribution factor. तो जनरली देखो टाइप 1 प्रॉब्लम की अगर बात करें, बेसिक फॉर्मूले की अगर बेसिक प्रॉब्लम की बात करें, तो जहां पर आपको n कैलकुलेट करना होगा, तो जनरली दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द VDF, LDF एंड FOS वैल्यू। अगर FOS वैल्यू इज नॉट गिवन यू कैन कंसीडर 1। अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू नहीं गिवन है, इन दैट केस यू कैन कंसीडर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज 1। तो जब आपका इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इन द वेरियस क्वेश्चन यू विल फाइंड, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए भी होंगे तो आपको इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द डेटा रिलेटेड टू द ऑल दिस फैक्टर। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं F से और इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं D से। ये नोटेशंस भी यूज होते हैं। अब मुद्दे की बात क्या है कि VDF है क्या और इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, that is our separate discussion. So we will have the discussion for the VDF. बात कर लेते हैं व्हीकल डैमेज फैक्टर की। तो सबसे पहले इसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द VDF। अगर मैं आपसे बात करूं कि VDF की यूनिट क्या होने वाली है, एनी आइडिया? एनी आइडिया? तो इसकी जो यूनिट होने वाली दैट विल बी द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल पर कॉमर्शियल व्हीकल, पर कॉमर्शियल व्हीकल। अब इसको समझेंगे हम लोग, बट एक नया टर्म आपको देखने को मिला दैट इज द कॉमर्शियल व्हीकल। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब कभी भी आप कोई भी फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन करेंगे, तो वी आर नॉट कंसर्न कि एक रोड पर जितना भी ट्रैफिक आने वाला है हम सबके लिए डेटा कलेक्ट करें। वी आर ओनली कंसर्न विद द कॉमर्शियल व्हीकल, हमें केवल कॉमर्शियल व्हीकल से मतलब है। तो सर अब ये कॉमर्शियल व्हीकल की डेफिनेशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा जो व्हीकल हम देख रहे हैं, जो व्हीकल हम समझ रहे हैं वो कॉमर्शियल व्हीकल है या नहीं है? हाउ यू विल नो? तो जिस भी व्हीकल का वेट 3 टन या उससे ज्यादा होने वाला है, दैट व्हीकल विल बी कंसीडर एज द कॉमर्शियल व्हीकल, दैट व्हीकल विल बी कंसीडर एज द कॉमर्शियल व्हीकल। तो जिन भी व्हीकल का वेट 3 टन से ज्यादा होगा वो सभी के सभी व्हीकल कॉमर्शियल व्हीकल हो जाएंगे। जिनका भी वेट इससे कम होने वाला है वो सभी आपके नॉन कॉमर्शियल व्हीकल है। इस पूरे स्टडी में हमें जो मतलब है वी आर कंसर्न विद द कॉमर्शियल व्हीकल ओनली। ठीक है, अब अगर इस क्राइटेरिया को अप्लाई करते हैं तो 3 टन से ज्यादा वाले व्हीकल तो कई हो सकते हैं। देयर विल बी वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉमर्शियल व्हीकल, यस और नो। तो फॉर एग्जांपल आपका बस हो सकता है, अलग अलग एक्सल कॉन्फ़िगरेशन के ट्रक हो सकते हैं, यस और नो। ऑल दीज आर द कॉमर्शियल व्हीकल। 2 एग्जाम्पल मैंने ले लिए, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। बस भी कॉमर्शियल व्हीकल है, ट्रक भी कॉमर्शियल व्हीकल है। अब बस और ट्रक का एक्सल कॉन्फ़िगरेशन सेम हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इनका आपका एक्सल अरे एक किसी भी व्हीकल की अगर बात करें तो दिस इज योर एक्सल कॉन्फ़िगरेशन। ये एक व्हील लगा हुआ है, एक व्हील लगा हुआ है, लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी द फ्रंट एक्सल और एक एक्सल रेयर में होगा और ये व्हील असेंबली है। योर एक्सल कॉन्फ़िगरेशन में बी लाइक दिस, योर एक्सल कॉन्फ़िगरेशन में बी समथिंग लाइक दिस। फ्रंट में एक एक व्हील लगा हुआ है और बैक में 2 व्हील लगे हुए हैं और जिसको आप बोलते थे दिस वाज योर स्टैंडर्ड एक्सल, दिस वाज योर स्टैंडर्ड एक्सल। दोनों ही कॉमर्शियल व्हीकल हैं। अब मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, मैं इन कॉमर्शियल व्हीकल को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल में। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी केयरफुली, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। हम सभी कॉमर्शियल व्हीकल को
नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल में कन्वर्ट कर लेंगे और ये कन्वर्जन आप कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द VDF। रोल समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन से कोई मतलब नहीं। रोड पर तो ये एक्सेल भी मूव कर रहा है, रोड पर एक्सेल की कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ भी हो सकता है, यस और नो। रोड पर एक्सेल का कॉन्फ़िगरेशन समथिंग लाइक दिस, जिसको आप टेंडम ट्राइडेंट बोलते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ द एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन आर देयर। अब हम इन सबको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड एक्सेल के फॉर्म में। वी आर नॉट कन्वर्टिंग द डिफरेंट क्लास ऑफ एक्सेल। एक अलग तरीके के एक्सेल को आप स्टैंडर्ड एक्सेल में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। आप एक पूरे के पूरे कॉमर्शियल व्हीकल के लिए कितने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल होंगे, इस बात को बताना चाह रहे हैं। और इसके लिए हम लोग जो टर्म यूज करने वाले हैं, दैट विल बी द VDF। दैट विल बी द VDF। तो शुड आई प्रोवाइड द लैंग्वेज फॉर दिस? लैंग्वेज प्रोवाइड कर दें इसके लिए। तो VDF इज अ मल्टीप्लायर टू कन्वर्ट number of commercial vehicle of different axle load and axle configuration into number of repetition of स्टैंडर्ड एक्सेल लोड ऑफ मैग्नीट्यूड। और स्टैंडर्ड एक्सेल लोड का मैग्नीट्यूड आपको पता है, दैट इज गोइंग टू बी द 80 किलोन्यूटन एज पर द IRC 37/2012। ये हम लोग बात कर चुके हैं। तो नाउ आई थिंक यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस यूनिट। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल पर कॉमर्शियल व्हीकल। What will be the unit of the VDF? Number of standard Excel per commercial vehicle. क्लियर है बेटा? अब ये पूरा कन्वर्जन होगा कैसे? अब ये पूरा कन्वर्जन कैसे होने वाला है, तो इसके लिए पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो डिफरेंट एक्सेल्स कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, तो एक एक्सेल आपको इस तरीके का देखने को मिल सकता है। You may find the Excel something like this। ये सभी अलग अलग एक्सेल हैं। दिस इज योर 1, दिस इज योर 2। सेकेंड एक्सेल की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी योर 3rd। दिस इज योर एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन। और जैसा मैंने बोला था, दिस विल बी योर 4th एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन। ये एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज योर एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन। कितना कितना इनका लोड रहता है, कितना कितना हर एक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ध्यान हो तो ये कुछ और नहीं है, ये आपका स्टैंडर्ड एक्सेल है। और स्टैंडर्ड एक्सेल के लिए तो आपको पता है कि जो लोड होगा इसमें, दैट विल बी ऑफ 80 किलोन्यूटन। दैट विल बी ऑफ, ये स्पेसिफिकेशन है, ये आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। दीज आर द स्पेसिफिकेशन। जिस तरीके से हम लोगों ने स्टैंडर्ड एक्सेल डिफाइन किया था, उसी तरीके से और भी एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी अब हम लोग बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, तो फॉर दिस एक्सेल द लोड विल बी 65 किलोन्यूटन। इस एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिंगल जब एक एक व्हील लगा हुआ दोनों तरफ, तो लोड जो होने वाला फॉर दिस एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज गोइंग टू बी द 65 किलोन्यूटन। दिस इज गोइंग टू बी और 148 किलोन्यूटन। और यहाँ जहाँ पर 3 एक्सेल आपको दिख रहे हैं, ट्राइडेंट जिसको आप बोलते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 2 to 4 किलोन्यूटन। 2 to 4 किलोन्यूटन। कॉमर्शियल व्हीकल में तो कोई भी एक्सेल हो सकता है ना भाई। कॉमर्शियल अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो इस केस में आप देख पा रहे हैं दोनों ही जगह 1 एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन लगा हुआ है। फॉर द फ्रंट एक्सेल एंड फॉर द रेयर एक्सेल वी हैव यूज्ड द कॉन्फ़िगरेशन 1 एज वी हैव जस्ट डिस्कस। यस और नो? ये एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन आपने प्रोवाइड किया। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं इन द केस ऑफ इन दिस एग्जांपल, तो यू कैन से हियर द एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन इज 1 एंड हेयर द एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन इज 2। और आप दोनों ही व्हीकल को पहले ही बोल चुके हैं, लेट्स से बोथ दीज व्हीकल्स आर द कॉमर्शियल व्हीकल। ये दोनों के दोनों ही व्हीकल जो है बेटा, वो कॉमर्शियल व्हीकल है। तो नाउ व्हाट वी वांट, हम इन सभी कॉमर्शियल व्हीकल को नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं।
अभी गेम क्लियर, कहानी धीमे धीमे समझ में आ रही है। और सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, सबसे पहला काम कर लेते हैं कि जितने भी ये डिफरेंट एक्सेल हैं, ये जितने भी डिफरेंट एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन हैं, इन सबको स्टैंडर्ड एक्सेल में कन्वर्ट कर लें। इन सबको स्टैंडर्ड एक्सेल में कन्वर्ट कर लें ऑफ 80 किलो न्यूटन, और यू कैन से और 8 टन्स, और यू कैन से 8000 kg। ये सभी आपके स्टैंडर्ड एक्सेल की बात है। और इस कन्वर्जन के लिए जो आप एक टर्म यूज करने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज गोइंग टू बी योर EALF। व्हाट डू यू मीन बाय दिस EALF? दिस इज गोइंग टू बी द इक्विवेलेंट एक्सेल लोड फैक्टर। EALF is going to be your equivalent Excel load factor। कैसे निकालते हैं EALF को? इसी को बोलते हैं फोर्थ पावर लॉ। तो EALF जो होने वाला है, that will be equal to L1 upon LS to the power 4। Don't forget to apply this power 4। जनरली गलती हो जाती है कि हम फोर्थ पावर अप्लाई नहीं करते। Where L is your L, you can say L और L1 is going to be your Excel load। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है तो L विल बी इक्वल टू 65। इफ दिस इज द एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन, L इज गोइंग टू बी द 80 किलो न्यूटन। इफ दिस विल बी द एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन, L विल बी इक्वल टू द 148 किलो न्यूटन। तो L क्या है समझ में आ गया? L क्या है समझ में आ गया? वन टर्म हटा देता हूं। तो L इज गोइंग टू बी योर एक्सेल लोड, जो भी एक्सेल लोड है, एंड LS इज गोइंग टू बी योर स्टैंडर्ड एक्सेल लोड। LS is going to be your standard Excel load। तो अब बहुत क्लियर है बात कि विद द हेल्प ऑफ द EALF मैं किसी भी एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के लिए इक्विवेलेंट एक्सेल लोड फैक्टर निकाल सकता हूं। मैं किसी भी एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के लिए इक्विवेलेंट एक्सेल लोड फैक्टर निकाल सकता हूं। यस और नो? बोलो भाई, यहां तक की कहानी क्लियर है कि नहीं? और ये VDF कैलकुलेट करने के लिए आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो कॉमर्शियल व्हीकल का एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात कर लूँ, इस कॉमर्शियल व्हीकल की बात कर लूँ, तो यहाँ पर दो एक्सेल हैं, एक्सेल A एंड एक्सेल B। वी नीड टू कन्वर्ट बोथ दिस एक्सेल इनटू द फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड एक्सेल। यस और नो? एक्सेल A जो कि फ्रंट एक्सेल है आपका, एक्सेल B जो कि आपका रेयर एक्सेल है, इन दोनों को ही हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड एक्सेल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर हमें उसका चाहिए रिपीटिशन, नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ द स्टैंडर्ड एक्सेल डिवाइड बाय द पर कॉमर्शियल व्हीकल। यस और नो? और ये एक्सेल को तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द EALF। तो फाइनली अगर मैं आपको बताना चाहूं कि बेटा VDF की वैल्यू क्या होगी, तो वी कैन राइट द VDF विल बी इक्वल टू, पहला फॉर एग्जांपल ये पहला एक्सेल, जितने भी एक्सेल हैं, फ्रंट एक्सेल की मैं बात कर रहा हूं, N1 फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से L1 एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय LS टू द पावर 4। N2 दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन। इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा टू प्रोवाइड यू मोर क्लियरिटी। दिस इज गोइंग टू बी L2 अपॉन LS टू द पावर 4 एंड सो ऑन डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल। नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल, तो मान लो आपने टोटल 50 कॉमर्शियल व्हीकल स्टडी किए थे। 50 कॉमर्शियल व्हीकल में आपको 100 एक्सेल मिले और सब एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग थे। यस और नो? तो किस कॉन्फ़िगरेशन के कितने एक्सेल थे उस पूरे स्टडी में, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी। दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी। मान लो 100 एक्सेल सर्वे किए थे, उसमें 10 एक्सेल मुझे ऐसे देखने को मिले, उसमें से 10 एक्सेल मुझे 65 किलो न्यूटन वाले मिले, जितनी भी मैंने एक्सेल सर्वे किया था। तो आई कैन से द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी 10%। यस और नो? अरे 100 में से 10 एक्सेल 65 के थे, 20 एक्सेल आपको देखने को मिले ऑफ 80 किलो न्यूटन के। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस 80 किलो न्यूटन एक्सेल इन दैट स्टडी वॉज 20%। यस और नो? तो कितने टोटल व्हीकल आपने, कितने टोटल एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन किए, उसके बेसिस पे आप इनकी फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप बेटा पूरे टर्म को ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ और नहीं है, ये क्या है? नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल।
और डिवाइड बाई नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल। इसी तरीके से तो हम लोगों ने डिफाइन किया था व्हीकल डैमेज फैक्टर को। इन दिस वे वी हैव डिफाइंड द व्हीकल डैमेज फैक्टर। बोलो बेटा, यहां तक की कहानी क्लियर है कि नहीं? यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी, और आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? यस और नो? तो सर ये जब हम VDF कैलकुलेट करना चाहेंगे, जब कभी भी हम VDF निकालना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा एक्सेल सर्वे। अब सर एक रोड पर जहां पर भी आप ये सर्वे कर रहे हैं, जहां पर भी आप ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वहां पर तो बहुत सारे कॉमर्शियल व्हीकल होंगे ना, वहां पर तो बहुत सारे कॉमर्शियल व्हीकल होंगे ना। क्या सर सभी कॉमर्शियल व्हीकल का एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा हमें टू डिफाइन द VDF? टू डिफाइन द VDF, सर इट इज दिस कंपल्सरी टू कलेक्ट द डेटा फॉर ऑल द कॉमर्शियल व्हीकल? यस और नो? तो आंसर विल बी नो। अब आप पूरे दिन सभी कॉमर्शियल व्हीकल का एक्सेल सर्वे तो नहीं कर सकते हैं। तो हेयर IRC प्रोवाइड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, और ये सारी जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं यहां पर, ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड इन द IRC 37/2012। तो ये सभी आपके कोडल प्रोविजन है। तो उन्होंने बोला अगर टोटल नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे की बात कर लें, और जितने भी होने वाले उसके बेसिस पे आपको बताया गया कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल टू बी सर्वेड। कितने आपको कॉमर्शियल व्हीकल सर्वे करने, ये डिपेंड करेगा कितने टोटल कॉमर्शियल व्हीकल वहां पर हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे इज लेस देन 3000, किसी भी रोड पे अगर एक कॉमर्शियल व्हीकल जो है वो 3000 से कम है, इन दैट केस आपको कम से कम 20% व्हीकल को, कम से कम 20% व्हीकल का एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन का सर्वे परफॉर्म करना पड़ेगा। You need to collect the data for 20% vehicle if the number of commercial vehicle per day is less than 3000। क्लियर है? कॉमर्शियल व्हीकल की रेंज अगर 3000 से 6000 है, तो उस केस में कम से कम 15% व्हीकल का आपको एक्सेल सर्वे परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड इफ द कॉमर्शियल व्हीकल आर ग्रेटर देन 6000, अगर कॉमर्शियल व्हीकल 6000 से ज्यादा है, इन दैट केस यू नीड टू परफॉर्म मिनिमम 10% एक्सेल सर्वे डेटा। तो कम से कम आपके पास एक्सेल सर्वे की हेल्प से 10% व्हीकल का डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। बोलो भाई, यहां तक की सभी बातें क्लियर है? तो दिस गाइडलाइन इज प्रोवाइडेड बाय द IRC 37 टू डिफाइन द VDF। दिस इज द मिनिमम व्हीकल दैट शुड बी सर्वेड टू डिफाइन द VDF। The discussion is clear to all of you? क्लियर है भाई यहां तक की बातें सभी को? One more important guideline is there. As per IRC। सर मान लीजिए अगर मुझे कहीं पर ऐसा पॉसिबल नहीं कि मैं डेटा कलेक्ट कर पाऊं, कोई नया ही प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हो जहां पर आपके पास प्रीवियस कोई डेटा, प्रीवियस कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इन दैट केस व्हाट वी कैन डू? उस केस में क्या करें? तो आपने बोला कि अगर इनिशियल ट्रैफिक जो कि प्रोजेक्टेड ट्रैफिक है आपका इन द टर्म्स ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे, इन द टर्म्स ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे की अगर बात करें, वो 0 से 150 की रेंज में है, 150 से 1500 की रेंज में है, या फिर ग्रेटर देन 1500 है, या फिर ग्रेटर देन 1500 है। डिपेंड करेगा आपका टेरेन कंडीशन कैसा है। तो फॉर एग्जाम्पल द टेरेन इज प्लेन और रोलिंग, या फिर आप बात कर सकते हो इन द केस ऑफ हिली टेरेन। तो इफ द कंडीशन इज समथिंग लाइक दिस, इफ द इनिशियल ट्रैफिक in the terms of commercial vehicle per day is in the range of 0 to 150, so for plain terrain you can use the vehicle damage factor as 1.5। vehicle damage factor आप 1.5 क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। for 150 to 1500 you can consider the vehicle damage factor as 3.5, and for greater than 15% 1500 you can consider the vehicle damage factor। तो दीज आर द सजेस्टेड वैल्यू ऑफ द व्हीकल डैमेज फैक्टर। यह आपके व्हीकल डैमेज फैक्टर की सजेस्टेड वैल्यू है एज पर IRC 37 फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन
फॉर द डिफरेंट इनिशियल ट्रैफिक। इन द केस ऑफ हिली टेरेन, अगर हिली टेरेन की हम लोग बात करते हैं तो दीज वैल्यूज आर 0.5। हाँ, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी। तो अगर इफ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द डेटा, अगर आपको डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं, इफ दे आर प्रोवाइडिंग यू द टेरेन कंडीशन, अगर उन्होंने टेरेन कंडीशन प्रोवाइड कर रखी है और कॉमर्शियल व्हीकल पर डे आपको प्रोवाइड करे गए, इन दैट केस यू नीड टू नो दिस वैल्यू, जिनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, व्हीकल डैमेज फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है भाई? तो ये पूरी बातें हो गई रिलेटेड टू द व्हीकल डैमेज फैक्टर। वी विल सी वन न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराने वाला हूं आज की क्लास में, जहां पर हम लोग पूरा एप्लीकेशन देखेंगे व्हीकल डैमेज फैक्टर, या फिर EALF का भी आप बोल सकते हैं, हाउ वी कैन फाइनली कैलकुलेट द व्हीकल डैमेज फैक्टर। द डिस्कशन अबाउट द व्हीकल डैमेज फैक्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द डिस्कशन अबाउट द व्हीकल डैमेज फैक्टर is clear to all of you? Related to the vehicle damage factor and how to calculate the design traffic. These two part we have already covered. तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द गेट 2 मार्क प्रॉब्लम। ये गेट के एग्जाम में आपका 2 मार्क्स का प्रॉब्लम आया हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो लेट्स सी अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। अ नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल per day when construction is completed is given as 5,000 vehicle, commercial vehicle per day. The design life of the road is given as 15 years. Rate of growth of traffic is given as 7.5%. Load factor of safety, or you can say the factor of safety, is given as 1.3. The value is given as 1.3. Find out design traffic in MSA for the following data. तो एक्सेल सर्वे जो आपने किया था, दैट इज गिवन एज एक्सेल्स लोड इन गिवन इन टन एंड फ्रीक्वेंसी दे हैव आल्सो प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी भी प्रोवाइड कर रखा गया इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो दिस इज द डेटा दैट दे हैव प्रोवाइडेड। तो डेटा इज गिवन एज लाइक दिस: 18, दिस इज गोइंग टू बी 10, 14, 20, 10, 35, 8, 15 and 6, 20. So this is the Excel data, Excel load data that you have collected. So in this question you have to calculate the design traffic. आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? और यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हैं the lane distribution factor as 1. You can consider the lane distribution factor as 1. Find out the design traffic. That means, so everyone try to solve this question. तो I will provide you 1 minute or 1 minute 30 second time कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें और आंसर निकालने की कोशिश करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, यू नीड टू कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक। आपको डिजाइन ट्रैफिक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द एन, और एन का फॉर्मूला में ऑलरेडी पता है, दैट इज 365 इंटू ए 1 प्लस आर टू द पावर 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n-1 इंटू व्हीकल डैमेज फैक्टर इंटू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी होल डिवाइड बाई आर बाई 100। सो वी कैन अप्लाई, बट यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, दे हैव नॉट प्रोवाइडेड द VDF की वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं करी गई है। एंड फॉर द VDF दे हैव कलेक्टेड सम फील्ड डेटा। उन्होंने एक्सेल सर्वे किया है एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, और 18 टन्स के एक्सेल की फ्रीक्वेंसी जो है वो 10% है। जितने भी व्हीकल आपने एनालाइज किए थे
उसमें 10% एक्सल्स ऐसे थे जिनका जो वेट है दैट इज 18 टन्स. सिमिलरली 20% एक्सल्स आर देयर which are having the axle load as 14 tons. So in this question this is the two part problem. ये आपका बेसिकली गेट का 2 मार्क्स का प्रॉब्लम है. एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जैसा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अर्लियर द एक्सल लोड वाज 8.2 टन्स और अभी जो एज पर IRC 37/2012 आप बात कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग द स्टैंडर्ड एक्सल लोड एज 8 टन. तो ये पहले का क्वेश्चन है, गाइडलाइन के पहले का क्वेश्चन है. तो इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज द स्टैंडर्ड एक्सल लोड ऑफ 8.2 टन्स. 8.2 टन्स का स्टैंडर्ड एक्सल लोड हम यहाँ पर क्या करने वाले, कंसीडर करने वाले. तो दैट पॉइंट आई एम मेंशनिंग बिकॉज अगर आप इस बात को नहीं ध्यान देंगे तो व्हेन यू विल प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज कि व्हाई दे आर यूजिंग द 8.2 टन्स. वी हैव रिसेंटली डिस्कस्ड that the standard axle load is 8 tons. तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बिफोर द गाइडलाइन का क्वेश्चन है. तो फॉर दैट इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कंसीडर द स्टैंडर्ड एक्सल लोड एज 8.2 टन्स. तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन पार्ट, देखते हैं, ट्राई करते हैं. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन पार्ट. और सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हीकल डैमेज फैक्टर. और व्हीकल डैमेज फैक्टर आपने बोला था नंबर ऑफ द रिपीटिशन ऑफ द स्टैंडर्ड एक्सल पर कॉमर्शियल व्हीकल. और यहां पर आपको एक्सल कॉन्फ़िगरेशन गिवन है. तो कैन वी राइट द VDF विल बी इक्वल टू N1 L1 अपॉन LS टू द पावर 4. तो लेट्स से दिस टर्म आर L1, दिस इज योर L2, L3, L4 एंड L5. 5 आपके पास एक्सल कॉन्फ़िगरेशन है. N2 L2 डिवाइड बाई LS टू द पावर 4 प्लस N3 L3 डिवाइड बाई LS टू द पावर 4, N4 L4 डिवाइड बाई LS टू द पावर 4 प्लस N5 L5 LS होल टू द पावर 4 डिवाइड बाई नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल. नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल. लेकिन यहां पर सवाल में जो डेटा आपको गिवन है दैट दे हैव प्रोवाइडेड द डेटा इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के टर्म में आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो वॉट एवर द कॉमर्शियल व्हीकल यू हैव कंसीडर फॉर दिस एनालिसिस, उसमें से 10% फ्रीक्वेंसी दे रखी गई आपको L1 कॉन्फ़िगरेशन की, 20% फ्रीक्वेंसी दे रखी गई आपको L2 कॉन्फ़िगरेशन की. तो दे हैव प्रोवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्म में ही इसको यूज कर लेते हैं. तो ऑब्वियसली जो भी आपने एक्सल सर्वे किया है उसमें परसेंटेज गिवन है. तो कैन वी राइट द सेम एक्सप्रेशन समथिंग लाइक दिस. तो 10/100. अब यहाँ पर L1 अपना कितना हो जाएगा, L1 इज गोइंग टू बी 18, L1 इज गोइंग टू बी 18 डिवाइड बाई 8.2 होल टू द पावर 4. सिमिलरली द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 20%. So this is going to be 20/100 and this is going to be 8.2 and L2 is given as 14. Next frequency is given as, next frequency आपको दे रखी गई 35 और 10. So this is going to be 35/100 and 10 divided by 8.2 whole to the power 4 plus next frequency is given as 15 and 8. 15/100, 8 divided by 8.2 whole to the power 4 plus the last frequency is given as 20. So this is going to be 20/100, 6 divided by 8.2 the power 4. Can we write like this? So now there is no need to number of the commercial vehicle. यहाँ पर जो आपने रिप्रेजेंटेशन कर दिया दैट वी हैव यूज द फ्रीक्वेंसी फॉर्म, फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट में डेटा को यूज कर लिया तो वी कैन यूज दिस इक्वेशन डायरेक्टली. और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं VDF. तो मेरे पास डेटा अवेलेबल मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ. तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन, व्हेन यू विल सॉल्व ऑल दीज टर्म्स, यू आर गोइंग टू गेट द VDF इज गोइंग टू बी 4.98. इस तरीके से आप VDF की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड वंस वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ VDF, एक बार जब आपने VDF की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो नाउ वी कैन वेरी इजीली डिफाइन द डिजाइन ट्रैफिक
or you can say n will be equal to 365 into a 1 plus r by 100 to the power n minus 1 into vehicle damage factor into lane distribution factor into factor of safety divide by r by 100. You just need to put all the value now. अब केवल आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर. तो 365 number of commercial vehicle after the completion of the construction period is given as 5000. This is going to be 1 plus 7.5 by 100 and the design life is given as 15 years. So you can put all these values. So this is going to be 15 minus 1 into vehicle damage factor, just we have calculated 4.98. Lane distribution factor is given as 1.0. Factor of safety is given as 1 by 1.3. Divide by 7.5 by 100. तो कैन वी राइट इन दिस वे? इस तरीके से सारी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व तो यू विल गेट 308.589 इंटू 10 to the power 6 और ये वैल्यू आपको मिलने वाली CSA में, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल. एंड सेम वैल्यू वी कैन रिपोर्ट तो 308.589 in MSA and this is going to be your million standard Excel. This is going to be your million standard Excel. So यही आपको कैलकुलेट करना है. This is going to be your design traffic. I hope the discussion is clear to all of you. क्लियर बेटा? यहां तक की सभी बातें सभी को, यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? The discussion is clear to all of you. So in this way we have completed our discussion for the concept and numerical part. हम लोगों ने complete कर लिया how to calculate the design traffic. One more term is there जिसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं. That is going to be the lane distribution factor. That is going to be the lane distribution factor जिसको आपने रिप्रेजेंट किया था LDF से और you can say D. अब देखो इसका गेम क्या है. तो जनरली क्वेश्चंस जो आपके आने वाले हैं वहां पर ये डेटा आपको गिवन होगा. दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. बट समझ लेते हैं होता क्या है. तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल ट्रैफिक in each direction and in each lane is required for determining total equivalent standard axle load, repetition to be considered in design. सिंपल भाषा में अगर बात करें तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि एक रोड पर जितना भी ट्रैफिक आ रहा है तो वी शुड नो कि कितना ट्रैफिक, जो भी टोटल ट्रैफिक है उसका डायरेक्शन वाइज क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेन वाइज क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक रेफरेंस के लिए, इन द केस ऑफ अनडिवाइडेड रोड है और मान लो सिंगल कैरिज वे. अनडिवाइडेड रोड का मतलब क्या है? सिंगल कैरिज वे. तो इन द एब्सेंस ऑफ डेटा यू कैन एज्यूम दिस वैल्यू. तो फॉर एग्जांपल अगर एक सिंगल लेन की रोड है, द विड्थ इज गोइंग टू बी 3.75 मीटर एज पर IRC. तो ऑब्वियसली जो भी ट्रैफिक आने वाला वो सभी के सभी बोथ डायरेक्शन ट्रैफिक विल यूज द सेम लेन. तो हेयर यू कैन से द लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज गोइंग टू बी 1. ट्रैफिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर दैट वी आर कंसिडरिंग द लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एज 1. सिमिलरली अगर बात करें, लेट्स से देयर इज अ 2 लेन रोड और 2 लेन रोड में ट्रैफिक का मूवमेंट इस तरीके से है. तो इन दिस वे यू कैन कंसीडर द D इज गोइंग टू बी 0.50. हाफ ऑफ ट्रैफिक इज डिवाइडिंग इनटू द बोथ लेन. तो द विड्थ ऑफ दिस रोड और दिस कैरिज वे विल बी इक्वल टू 7 मीटर.
So in the absence of data, code have provided some data values for the divided highway as well as for the undivided highway. तो जो ट्रैफिक है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा अलग अलग लेन पे, अलग अलग डायरेक्शन पे, फॉर दैट वी आर कंसीडरिंग दिस फैक्टर, दैट इज द लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. VDF के लिए और लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए आप डायरेक्शन वाइज, लेन वाइज स्टडी करने वाले, अनबायस्ड स्टडी होनी चाहिए. तो हर कंडीशंस को, बिल्कुल प्रैक्टिकल कंडीशंस को के बेसिस पे ही आपको डेटा कलेक्ट करना है. तो दीज आर द सर्टन गाइडलाइंस जो आपको IRC 37 की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं, जिसकी हेल्प से आप डिज़ाइन ट्रैफिक कैलकुलेट कर सकते हैं. तो नाउ आई थिंक आफ्टर दिस डिस्कशन नाउ यू आर क्लियर हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिज़ाइन ट्रैफिक. एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ये डिज़ाइन ट्रैफिक N कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये पॉइंट सभी को क्लियर है, यस और नो? सो आवर ऑब्जेक्टिव वॉज टू फाइंड आउट द थिकनेस. Our objective was to find out the thickness of the flexible payment. So हम flexible payment की thickness को find out करना चाह रहे थे, और जिसके लिए आपने बोला था सर 2 parameters are required. One is going to be the design traffic. या आप डिज़ाइन ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे थे, जो हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया. Now we will see कि how to find out the soil characteristics. और soil की characteristics को find out करने के लिए we will have the discussion for the CBR test, or based on this value with the help of the IRC 37 2012 we can easily find out the thickness of the payment. तो अगर इन शॉर्ट बात करें तो हम लोगों ने फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइन पार्ट का मेजर डिस्कशन दैट वाज रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ द डिज़ाइन ट्रैफिक दैट वी हैव कवर्ड. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे related to the CBR test and how they are asking the question based on the design traffic and CBR thickness से related किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CBR टेस्ट, कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल पार्ट. कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सो आई होप all this discussion is clear to all of you. So this was all about for this class. Do practice the previous year question as much as you can. So based on this concept you will find various question from your previous year. तो आप सभी उन questions को complete कर लेंगे. जो भी question आपको देखने को मिलता है किसी भी एग्जाम में related to the design traffic that you can easily solve. This is the important information for all of you. तो 5 दिसंबर को 3 बजे आपका एक अनअकैडमी की तरफ से गेट 2023 के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है. तो आप सभी इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो जस्ट विजिट द अनअकैडमी ऐप एंड यूज दिस कोड दैट इज KKS10, और जिसकी हेल्प से आप सभी लोग स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे. तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर बात करें टोटल 45 क्वेश्चंस आने वाले. तो किन सब्जेक्ट्स थे, कितने क्वेश्चन रहने वाले, दैट detail you can see here. You can refer this detail. So you all can enroll. So just visit the Unacademy app and use this code that is KKS10 to enroll for the Unacademy GATE scholarship test. So prepare yourself and everyone do participate in the scholarship test. Enroll now. I hope you all are using this feature that is Unacademy Ask a Doubt feature. So where you can simply upload your doubt, you will get the exact video solution in your comfortable language. तो various options are available. तो आप multiple doubts को और queries को clear कर सकते हैं. तो everyone just use this feature that is Unacademy Ask a Doubt feature to clear your doubts and queries. This is my Telegram group. तो आप सभी इस Telegram group के through connect हो सकते हैं मेरे से. तो you can follow this link to join the Telegram group, or you can simply search KKS10 on the Telegram. You will get the group. And in this group you will get regular update about all my classes, and you are also going to get the PDF of the YouTube class in this Telegram group. So those who have not joined yet, they all can join. So you can complete your subscription process to start your preparation with Unacademy in a systematic way, in an organized way. So for that you can go for the Plus. So in the case of Plus, you can go for the 12, 18 or 24 month subscription. These are the pricing for your Plus subscription. And similarly, you can go for the Iconic subscription. So for Iconic,
12, 18 and 24 month, these are the pricing for your iconic subscription. The long-term subscription is going to be economical for all of you. And in this way, you all can use my referral code, that is KKS10, to avail 10% off on your Unacademy subscription. Don't forget to apply this code to avail 10% off on your subscription cost. So this was all about for this class. Be ready for the discussion. CBR test and thickness of flexible payment, that we are going to discuss in the tomorrow's class. So if you are getting benefited from all these sessions, so do like and share the session, subscribe the channel and hit the bell icon for the regular update. Thank you everyone. Keep learning. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.